رات کی تاریکی آہستہ آہستہ صحرا کے سینے پر اتر رہی تھی۔ ریت کے بے کنار سمندر پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، مگر ان جھونکوں میں بھی ایک عجیب سی ویرانی بسی ہوئی تھی۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، جیسے کسی غریب کے پھٹے ہوئے دامن پر چاندی کے ٹکڑے سلے ہوں۔ دور دور تک نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ انسان کی کوئی آواز، صرف ریت، خاموشی اور تنہائی۔ اسی بے رحم صحرا میں ایک مسافر بھٹک رہا تھا۔ اس کا نام زید تھا۔ اس کے کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، اور آنکھوں میں تھکن کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کئی دنوں سے وہ ایک ایسے چشمے کی تلاش میں تھا جس کے بارے میں اس نے بچپن سے کہانیاں سن رکھی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ صحرا کے دل میں ایک پوشیدہ نخلستان ہے، جہاں کا پانی پینے والا نہ صرف اپنی پیاس بجھاتا ہے بلکہ اس کے دل کے سارے دکھ بھی دھل جاتے ہیں۔ زید کے دل میں برسوں سے ایک خلا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، قافلے تھے، مگر سکون نہیں تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا، ماضی کے زخم اسے ستاتے رہتے، اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی اسے ہر وقت کھائے جاتی۔ اسی بے چینی نے اسے اس صحرا تک پہنچا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے پاؤں ریت میں دھنس گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے خدا، اگر واقعی کوئی چشمہ ہے تو مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر دل میں درد سچا تھا۔ اچانک دور کہیں ایک مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ زید کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ وہ پوری طاقت جمع کر کے اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ ریت اس کے قدم روک رہی تھی، ہوا اس کے چہرے پر وار کر رہی تھی، مگر امید انسان کو وہ طاقت دے دیتی ہے جو جسم میں باقی نہیں رہتی۔ کافی دیر بعد وہ اس روشنی کے قریب پہنچا۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، آنکھیں گہری اور پرسکون، اور چہرے پر ایسی روشنی تھی جیسے اس نے دنیا کے سارے راز دیکھ لیے ہوں۔ بوڑھے نے زید کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ تم بہت دور سے آئے ہو، مسافر؟ زید نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے پانی چاہیے۔ میں اس پوشیدہ نخلستان کی تلاش میں ہوں۔ بوڑھے نے اپنے پاس رکھا ہوا مٹی کا پیالہ اٹھایا اور اس میں پانی بھر کر زید کی طرف بڑھا دیا۔ زید نے لالچ سے پانی پیا۔ جیسے ہی پانی اس کے گلے سے اترا، اسے محسوس ہوا کہ صرف اس کی پیاس ہی نہیں بجھی بلکہ دل کی گھبراہٹ بھی کچھ کم ہو گئی ہے۔ یہ پانی؟ زید حیرت سے بولا، یہ عام پانی نہیں۔ بوڑھا مسکرایا۔ پانی ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، فرق صرف پیاس کا ہوتا ہے۔ زید اس جملے کو پوری طرح سمجھ نہ سکا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، کیا اب جانتے ہیں وہ پوشیدہ نخلستان کہاں ہے؟ میں برسوں سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ بوڑھے نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بولا، لوگ ساری زندگی اسے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں جبکہ وہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ زید کے چہرے پر الجھن ابھر آئی۔ میں سمجھا نہیں۔ بوڑھے نے کہا، آج رات آرام کرو، صبح تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ زید اتنا تھک چکا تھا کہ مزید بحث نہ کر سکا۔ وہ جھونپڑی کے باہر ہی ریت پر لیٹ گیا۔ اوپر ستارے تھے، ارد گرد خاموشی، اور دل میں ہزار سوال۔ رات کے آخری پہر اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچپن کے اپنے گھر میں کھڑا ہے۔ اس کی ماں زندہ ہے، وہ مسکرا رہی ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے برسوں سے اپنی ماں کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا، تم اتنے بے چین کیوں ہو؟ امی، میں سکون ڈھونڈ رہا ہوں۔ ماں نے محبت سے کہا، سکون کبھی دور نہیں ہوتا، انسان خود اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اچانک خواب ٹوٹ گیا۔ زید نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں ریت پر سنہری رنگ بکھیر رہی تھیں۔ بوڑھا شخص اب بھی جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا۔ کیا تم نے خواب دیکھا؟ اس نے پوچھا۔ زید چونک گیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟
बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, सहरा इंसान से वो सब कुछ कहलवाता है जो वो दुनिया से छुपाता फिरता है। जैद खामोश हो गया। बूढ़े ने आहिस्ता से पूछा, तुम आखिर ढूंढ क्या रहे हो? पानी, दौलत या सुकून? जैद ने पहली बार दिल खोलकर बात की। मैं एक अमीर ताजिर था, मेरे पास सब कुछ था, मगर मैं हमेशा दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में रहा। मैंने दोस्त खोए, खानदान खोया और आखिर में खुद को भी खो दिया। जब मेरी मां मरी तो मैं इसके पास भी ना था। इस दिन के बाद से मेरे दिल में एक आग जलती रहती है। मुझे लगता है अगर मैं वो पोशीदा नखलिस्तान ढूंढ लूं तो शायद मुझे सुकून मिल जाए। बूढ़े ने गहरी सांस ली। इंसान की सबसे बड़ी प्यास पानी की नहीं, दिल की होती है। और दिल की प्यास दुनिया की किसी चीज से नहीं बुझती सिवाय कनात के। कनात? हाँ, जब इंसान अपने अंदर मौजूद नेमतों को पहचान लेता है तो उसके दिल में एक चश्मा फूट पड़ता है, फिर सहरा भी उसे बाग लगने लगता है। जैद ने बेयकीनी से पूछा, क्या सिर्फ सोच बदलने से इंसान खुश हो सकता है? बूढ़ा हंस पड़ा। सोच नहीं, नजर बदलने से। फिर इसने रेत पर एक लकीर खींची। अगर तुम इस लकीर को छोटा करना चाहो तो क्या करोगे? जैद ने कहा, इसे मिटा दूंगा। बूढ़े ने सर हिलाया। नहीं, इसके साथ एक बड़ी लकीर खींच दो, पहली खुद ब खुद छूटी लगने लगेगी। जैद खामोश हो गया। बूढ़ा बोला, जिंदगी के गम भी ऐसे ही होते हैं। जब इंसान सिर्फ अपने जख्मों को देखता है तो वो बहुत बड़े लगते हैं, मगर जब वो दूसरों के दुख, खुदा की नेमतें और जिंदगी की खूबसूरती देखने लगता है तो उसके गम छोटे होने लगते हैं। जैद के दिल में जैसे कोई बात उतरने लगी। बूढ़े ने उसे सहरा की तरफ इशारा किया। चिल्लू, आज तुम्हें असल नखलिस्तान दिखाता हूं। दोनों चलने लगे। सूरज बुलंद हो रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, मगर बूढ़े के चेहरे पर सुकून था। कई घंटे गुजर गए। जैद थक कर चूर हो गया। हम कहां जा रहे हैं? मुझे तो कहीं पानी नजर नहीं आता। बूढ़े ने कहा, बस थोड़ा और। आखिर वो एक बुलंद टीले पर पहुंचे। वहां से पूरा सहरा दिखाई देता था। सुनहरी रेत दूर तक फैली हुई थी। हवा नर्म हो चुकी थी। आसमान बेहद साफ था। बूढ़े ने कहा, आंखें बंद करो। जैद ने आंखें बंद कर लीं। अब अपने दिल की आवाज सुनो। शुरू में इसे सिर्फ हुआ की आवाज सुनाई दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन में माजी के सारे मंजर आने लगे। मां की मुस्कुराहट, बचपन की हंसी, दोस्तों के साथ बीते दिन, वो छोटी छोटी खुशियां जिन्हें इसने दौलत की दौड़ में खो दिया था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े की आवाज आई, तुम हमेशा इस चीज के पीछे भागते रहे जो तुम्हारे पास नहीं थी, कभी इस पर शुक्र नहीं किया जो तुम्हारे पास थी। जैद ने आंखें खोली। इसकी सांसें भारी थीं। मैंने वाकई कभी शुक्र अदा नहीं किया। बूढ़े ने कहा, इंसान जब शुक्र करना सीख लेता है तो दिल के अंदर एक चश्मा बहने लगता है। वही असल नखलिस्तान है। इसी लम्हे हुआ का एक ठंडा झोंका आया। जैद ने पहली बार महसूस किया कि सहरा इतना खौफनाक नहीं जितना वो समझता था। रेत के जर्रे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दूर कहीं परिंदे उड़ रहे थे। जिंदगी हर जगह थी, बस उसकी नजर अंधी हो चुकी थी। वो घुटनों के बिल बैठ गया और रोने लगा। बरसों का बोझ आंसुओं के साथ बह रहा था। बूढ़ा खामोशी से खड़ा रहा। काफी देर बाद जैद ने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे दिल के अंदर से कोई भारी पत्थर हिट गया हो। क्या यही वो पोशीदा नखलिस्तान है? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मगर लोग उसे सिर्फ तब देखते हैं जब वो अपने अंदर झांकने की हिम्मत करते हैं। जैद ने आसमान की तरफ देखा। इसे पहली बार महसूस हुआ कि सुकून किसी जगह में नहीं, इंसान के अंदर होता है।
वापसी पर जैद ने बूढ़े से पूछा, अब कौन है? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह भटका हुआ मुसाफिर था। और आपको ये सुकून कैसे मिला? बूढ़े ने कहा, जब मैंने ये मान लिया कि दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, मगर दिल का सुकून फिर भी हासिल किया जा सकता है। रात दोबारा उतर आई। इस रात जैद ने बरसों बाद सुकून की नींद सोया। सुबह जब वो बेदार हुआ तो झोंपड़ी खाली थी। बूढ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ रेत पर एक लकीर लिखी हुई थी, जो अपने दिल में चश्मा पा लेता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। जैद देर तक इस जुमले को देखता रहा। फिर इसने एक गहरी सांस ली और वापसी के सफर पर निकल पड़ा। मगर अब वो पहले वाला जैद नहीं था। सहरा वही था, रेत वही थी, सूरज वही था, मगर उसके दिल की कैफियत बदल चुकी थी। अब उसे हर हुआ के झोंके में रहमत महसूस होती थी। हर मंजर में खूबसूरती दिखाई देती थी। रास्ते में इसे एक जख्मी परिंदा मिला। पहले वाला जैद शायद इसे नजरअंदाज कर देता, मगर अब उसने इसे एहतियात से उठाया, पानी पिलाया और एक महफूज जगह पर रख दिया। चंद दिन बाद वो एक काफिले तक पहुंचा। काफिले वालों ने उसे खाना दिया और साथ ले लिया। सफर के दौरान जैद ने देखा कि लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और हर वक्त किसी न किसी कमी का शको करते रहते। इसे अपना पुराना वजूद याद आने लगा। एक रात काफिले के एक नौजवान ने इससे पूछा, तुम इतने मुतमईन कैसे रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई राज है? जैद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैंने जान लिया है कि इंसान की असल दौलत इसके दिल का सुकून है। नौजवान ने हैरत से पूछा, और वो कहाँ मिलता है? जैद ने अपने सीने पर हाथ रखा। यही। वक्त गुजरता गया। जैद अपने शहर वापस पहुंच गया। लोग हैरान थे। वो पहले जैसा मगरूर ताजिर नहीं रहा था। अब वो नर्म लहजे में बात करता, गरीबों की मदद करता और हर वक्त शुक्र अदा करता रहता। एक दिन इसके पुराने दोस्त ने पूछा, तुम में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? जैद ने कहा, मैं एक नखलिस्तान की तलाश में निकला था, मगर रास्ते में मुझे अपने दिल का रास्ता मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके पास मशवरा लेने आने लगे। कोई दौलत के बावजूद बेसुकून था, कोई रिश्तों के टूटने से गमज़दा, कोई नाकामी से टूटा हुआ। जैद हर एक को एक ही बात कहता, इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सुकून को बाहर तलाश करता है, हालांकि सुकून शुक्र, कनात और मोहब्बत के अंदर छुपा होता है। साल गुजर गए। जैद बूढ़ा हो गया, मगर उसकी आंखों में वही सुकून बाकी था जो उसे सहरा में मिला था। एक शाम वो अपने घर के बाहर बैठा गुरूब होते सूरज को देख रहा था कि एक नौजवान मुसाफिर उसके पास आया। इसके कपड़े गिर्द से भरे हुए थे, आंखों में बेचैनी थी और होंठ प्यास से खुश्क थे। मैं एक पोशीदा नखलिस्तान की तलाश में हूं, नौजवान ने कहा। जैद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसे बरसों पहले वाला अपना वजूद याद आ गया। उसने नौजवान को पानी पिलाया और नरमी से कहा, आराम करो मुसाफिर, सुबह तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यूं सहरा की वो कहानी चलती रही। एक भटका हुआ इंसान दूसरे भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाता रहा, क्योंकि असल नखलिस्तान कभी सहरा में नहीं था, वो हमेशा इंसान के दिल में छुपा हुआ था। ये दुनिया एक वसी सहरा की तरह है। इंसान सारी जिंदगी दौलत, शोहरत, कामयाबी और ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है, ये समझते हुए कि शायद अगली मंजिल पर उसे सुकून मिल जाएगा। मगर हकीकत यह है कि सुकून किसी मकाम, किसी खजाने या किसी कामयाबी में नहीं छुपा होता। असल सुकून शुक्र, कनात, मोहब्बत और अपने रब पर भरोसे में होता है। जो इंसान अपने दिल के अंदर मौजूद नेमतों को पहचान लेता है, वो कभी महरूम नहीं रहता। और जो सिर्फ कमियों को देखता है, वो समंदर के किनारे बैठकर भी प्यासा रहता है।